مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اور کئی جمعہ سے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بریلی کے تاجدار پکارتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں پیارے آقا کی بات چل رہی تھی، اور حقیقت میں دینے والے تو ہمارے نبی ہی ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کرتے ہیں، کوئی بھی ہو کہیں سے بھی ہو، اگر نبی کو پکارے تو وہ ضرور ہماری پکار کو سنتے ہیں، اور ہماری جو فریاد وہاں تک پہنچتی ہے۔ یقیناً ہماری جان، ہماری ایمان، ہماری آن، ہماری شان، سب کچھ ہمارے نبی ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ جن کے صدقے میں آسمان، زمین، عرش و فرش، لوح و قلم، ساری چیزوں کا وجود ہوا، یہاں تک کہ ہم اس جہان میں تشریف لائے تو اسی نبی کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہاں تک پہنچی تھی، گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ پیارے آقا کی خدمت جو ہے دائی حلیمہ نے کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنے گھر لے کر کے گئی، اور آپ کی پرورش جو ہے وہاں پر ہوئی۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قبیلہ سعد کی آبادی میں پہنچے تو وہاں قحط سالی کے شکار تھے، بارشیں ہونے لگتی ہے، لوگ جو ہے تو پریشان حال تھے۔ پیارے آقا کی آمد کی وجہ سے پریشانیاں وہاں کی دور ہو گئی، جانوروں کے دودھ تھن سے بھر گئے، جو کہ کافی دنوں سے جانوروں کے تھن سوکھے پڑے ہوئے تھے۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوان، ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی ہے، شام کو پہنچی، رات گزری، صبح سویرے پڑوسن کی ایک عورت آ جاتی ہے، آنے کے بعد عرض کرتی ہے، بہن حلیمہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے شوہر اس جہان سے چلے گئے، اب ہمارا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو میرا سہارا ہے، اور وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، دوائی پہ دوائی چل رہی لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہے ہیں۔ بہن آپ کو مکہ شریف آتی جاتی ہے، آپ شہروں کا جو ہے آمد و رفت آپ کا رہتا ہے، شہر سے آپ ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، بہن کسی ہمیں کوئی اچھے ڈاکٹر، اچھے طبیب کے بارے میں بتائیے جو ہمارے بچے کی جان بچا سکے، ورنہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا سہارا ہے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حلیمہ سعدیہ جب اس کی اس بات کو سنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام کیجیے، آپ رکیے، میں گھر سے آتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھر کے اندر جاتی ہیں، لکڑی کے ایک پیالے میں پانی لیتی ہیں، اور لانے کے بعد اس پڑوسن کی عورت کو دے دیتی ہے، اور دینے کے بعد عرض کرتی، بہن یہ پانی لے کر کے جا، اپنے بچے کو پلا دے، میرا یقین ہے کہ تمہارا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ، تمہارا جو بیٹا ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ وہ پڑوسن کی عورت اس پانی کو لیتی ہے، لینے کے بعد گھر پہنچتی ہے، اپنے بیٹے کو پلا دیتی ہے۔ جن گھنٹوں ابھی گزرے نہیں تھے، جو کافی دنوں سے دوائی پہ دوائی چل رہی تھی، اس کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اس کا بیٹا اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ پڑوسن کی عورت دوڑے دوڑے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں آتی ہے،
आने के बाद अर्ज़ करती, बहन ये बताओ कि आपने उस पानी में कौन सी दवाई मिलाई जो मेरा बेटा घंटू नहीं हुआ, उठ करके बैठ गया और अच्छा हो गया, चलने लग गया है। हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती, बहन मैंने उस पानी में कोई दवाई नहीं मिलाई, बल्कि रात जिस बच्चे को मक्के से लेकर के आए हूँ, उसी बच्चे के पैर को धुल करके तेरे बेटे को पिला दिया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, प्यारा आका के पैर के धुवन को पिलाया जा रहा है तो लोगों को शिफा मिल रही है। जानवरों के ऊपर उन पानी को छिड़का जा रहा है तो जानवरों की दूध बढ़ जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दस्ते अक़दस से टच किए हुए पानी को जब बच्चे को पिलाए जाते हैं, बीमारी को पिलाया जाता है तो बीमार शिफा पा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत हलीमा सादिया प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश करती है। प्यारे आका अब जिस्म के एतबार से जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, प्यारे आका की बढ़ने का आलम यह था कि आप महीनों में उतना बढ़ते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती हैं कि जिस तरीके से माओं को बच्ची की परवरिश पर, बच्चे की खिदमत पर तकलीफ़ होती है, यकीनन मुझे मोहम्मद की परवरिश पर कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई, कभी भी उनकी मैंने खिदमत की तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि जब मैं उसको बिस्तर पे सुला देती तो बिस्तर पूरा महक जाता, और जब जिस घर में रखते पूरा घर खुशबू से भर जाता। यहाँ तक के आस पड़ोस के लोग जब मेरे बच्चे की ज़ियारत के लिए आते तो अर्ज़ करते कि हलीमा तुमने बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर के आया है, ए हलीमा तुमने बड़ा मुबारक बच्चा लेकर के आया है। देखो इस बच्चे की आने की वजह से आबादी में शादाबी आई है, इस बच्चे की आने की वजह से सारी परेशानियां दूर हो गई है। जब से ये बच्चा आबादी में आए हैं, एक दरख्त के नीचे शेर और भेड़िया, शेर और बकरी जो तो चरते हुए दिख रहे हैं। आज की तारीख ये थी कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले साद की आबादी में नहीं आए थे, मामला ये था कि जंगल के जानवर जो है भेड़ जो है बकरियों को आकर के उठा लेकर के जाते थे। लेकिन जब से प्यारे आका की आमद हुई है, एक दरख्त के नीचे भेड़ और बकरी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ना जो है तो भेड़ किसी बकरी को उठा करके ले जा रहे हैं और ना ही बकरी जो है किसी भेड़ के खौफ से डर रहे हैं। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत हलीमा सादिया प्यारे आका को लेकर के आए हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती हैं कि मैंने एक मरतबा प्यारे आका को दूध पिला दिया और दूध पिलाने के बाद उनको घर पे सुला दिया। आज भी माओं की आदत होती है कि जब बच्चे को दूध पिला के सुलाते हैं तो देख लेते हैं कि बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हज़रत हलीमा सादिया ने जब प्यारे आका को सुलाया तो उनके दिल में आया कि मैं देख लूँ कहीं वो जाग तो नहीं रहे हैं। जब हज़रत हलीमा सादिया घर के अंदर गई तो क्या देख रहे हैं कि प्यारे आका की प्यारे आका की उंगुस्ते मुबारक जो है कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है, कभी सराने जा रही है, कभी पायती की जानिब जा रही है। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि जब मैंने इस पर गौर किया तो क्या देखती हूँ कि प्यारे आका की उंगली जिधर जा रही है चांद उधर जाता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे आका की उंगली दाहिने तरफ जा रही है तो चांद दाहिने तरफ जा रहा है। प्यारे आका की उंगली बाएं तरफ जा रही है तो उंगली बाएं तरफ जा रहा है। उंगली अगर सराने की तरफ जा रहा है, चांद सराने की तरफ जा रहा है। इसीलिए तो कहा गया चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महज में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब चलने लगे हैं। आप जब चलते हैं ज़मीन पर तो और बच्चों की तरह घिसेट करके नहीं चलते, या फिर आपके पैर में लड़खड़ाहट नहीं है, लग्जिश नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया से पास पड़ोस की औरतें आकर के कहती हैं, ए हलीमा देखो जिस बच्चे को तुम लेकर के आई हो मक्के से, देखो कितना मुबारक बच्चा है। देखो इस बच्चे की चलने की अंदाज तो देखो कि कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके पैर में ना तो लग्जिश है, ना लड़खड़ाहट है, और ना ही वो घिसेट करके चल रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध पीना छोड़ देते हैं तो हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमिना खातून की बारगाह में ले आती हैं और आने के बाद अर्ज़ करती है, ए आमिना खातून अब और चंद बरस के लिए मुझे इस बच्चे को दे दो, मैं और चाहती हूँ कि मैं मज़ीद इसकी कुछ खिदमत करूँ, मैं इसकी और खिदमत करना चाहती हूँ। हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमिना खातून से इजाज़त देती है। इजाज़त लेने के बाद फिर अपनी आबादी में आ जाते हैं। एक दिन प्यारे आका अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान ये बताए कि मेरे भाई अब्दुल्ला जो है वो रोज़ कहाँ जाते हैं। प्यारे आका की वालिदा हज़रत
हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती हैं कि बेटा तुम्हारे हिजाजी भाई जो है वो रोज़ जंगलों में बकरी को लेकर के जाया करते हैं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते अम्मी जान कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। प्यारे आका की इस बात को सुनकर हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती बेटा अगर आप जाना चाहे तो मैं आपको तो हुक्म नहीं दे सकती, लेकिन आप जाना चाहे तो मैं आपको रोक भी नहीं सकती हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अब्दुल्ला शाम बकरी लेकर के घर आए तो हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती बेटा कल जब तुम बकरी लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेकर के जाना, ये भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब रात गुजरी सुबह हुई, हज़रत अब्दुल्ला जब बकरी को कटघरे से बाहर निकालते हैं और हाँकते हैं, हकालते बकरी को जब हाँकते हैं तो बकरी चलने को तैयार नहीं है, बकरी नहीं चल रही है। जब बात समझ में नहीं आई तो अब्दुल्ला अपनी वालिदा हज़रत हलीमा सादिया को पुकारती हैं, अर्ज़ करते हैं अम्मी जान देखो बकरियां चल नहीं रही है, क्या होगी आज बकरियों को। हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती बेटा जब तक मोहम्मद पीछे रहेंगे उस वक्त तक बकरियां नहीं चलेगी, मोहम्मद को आगे करो और तुम पीछे से बकरियों को हकालो। जब प्यारे आका को आगे किया गया, जब बकरियों को पीछे से हकाला गया तो बकरियां अब चलने लग जाती है। गोया के जानवरों को भी मालूम है, गोया के बकरियों को भी मालूम है कि ये नबी आखिर ज़मा है, इनके आगे आगे मत चलो। गोया के उन जानवरों को मालूम है कि ये सैयदुल अंबिया है, इनके आगे आगे मत चलो। गोया के उन जानवरों को मालूम है ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे मत चलो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस जगह पर पहुँचे, बकरियां तो अंदर चली गई पहाड़ियों के अंदर। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये हुआ कि जब आप जिस दरख्त के करीब जाते, हज़रत अब्दुल्ला क्या देखते कि दरख्त का साया अगर दूसरी तरफ होता तो जिस दरख्त के नीचे प्यारे आका जाते टहनियाँ उधर आकर के साया करने लग जाती, उधर साया करने लग जाती। आप अगर किसी दरख्त के करीब जाते तो दरख्त खुद झुकता हुआ आपके करीब आ जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब शाम हुई अब्दुल्ला घर आए, अपनी वालिदा हलीमा सादिया से अर्ज़ करते अम्मी जान आज तो बड़ा अजीब व गरीब मामला हो गया, अम्मी जान आज तो बड़ा अजब मामला हो गया। कहने लगा बेटा क्या हुआ। कहते अम्मी जान जब मैंने बकरी को लेकर के जा रहा था, मेरे भाई मोहम्मद जब रेतीले मैदान से जा रहे थे तो रेत पर उनके कदमों के निशान नहीं पड़ते थे, लेकिन जब वो पत्थर पर उनके कदम पड़ते तो पत्थरों पर निशान पड़ जाते थे। कहिए सुभान अल्लाह, पत्थरों पर निशान पड़ जाते थे। और अम्मी जान यहीं तक नहीं बल्कि मैंने ये देखा कि जिस दरख्त के नीचे आप जाते, दरख्त की टहनियाँ अगर दूसरी तरफ होती तो आपके ऊपर आकर के छाँव करता। अम्मी जान यहीं तक नहीं, जब अगर ये मेरे भाई किसी दरख्त के करीब जाना चाहते तो दरख्त जो है झुक करके खुद करीब आ जाता। अम्मी जान इस तरीके से मामलात हुआ। मैंने देखा हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती बेटा किसी से मत बोलना, किसी से बताना मत, ये अजीमुशान बच्चा है, ये अजीम बच्चा है, अभी बहुत सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर दूसरे दिन अब बकरी लेकर के जाते हैं अब्दुल्ला, प्यारे आका भी साथ में जाते हैं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए, जिस दरख्त के नीचे गए, क्या देखते हैं कि झाड़ियों से सारे चरिंद परिंद आपके उस दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं और मंडलाने लगते हैं। गोया के वो चरिंद परिंद ऐलान कर रहे हैं कि नबी आखिर ज़मा आए हैं, उनकी चेहरे की ज़ियारत कर लो, नबी कौने ने इनकी चेहरे की ज़ियारत कर लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जंगलों के सारे जानवर आ जाते हैं, प्यारे आका की रुखे अनवर की ज़ियारत करते हैं। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शाम होती है, घर आ जाते हैं। आपको मौसमी बुखार लग जाता है, 3 दिन तक आप बकरियों के साथ जंगल में नहीं गए। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब 3 दिन तक नहीं गए तो एक दिन जंगल का शेर हज़रत हलीमा सादिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी को उठा ले गए। हज़रत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े रोते हुए घर आए। घर आने के बाद अर्ज़ करते अम्मी जान आज तो बड़ा गजब हो गया, आज तो बड़ा अजीब व गरीब मामला हो गया। कहते बेटा क्या हुआ। कहने लगे अम्मी जान सबसे दूध देने वाली बकरी को जानवर उठा लेकर के गया है, जंगल का जानवर उठा ले गया है। इतना सुनना था हज़रत हलीमा सादिया रोने लगती है, इतना सुनना था कि प्यारे आका की आंख खुल जाती है। प्यारे आका अर्ज़ करते अम्मी जान क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है, रोने की वजह क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका अर्ज़ करते हैं अम्मी जान आप रो क्यों रहे हैं। हज़रत हलीमा सादिया अर्ज़ करती बेटा जंगल का जानवर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी को लेकर के चला गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, इतना सुनना था। प्यारे आका उठ जाते हैं, अब्दुल्ला से कहते चलो कहाँ से बकरी को उठा करके ले गया जानवर। प्यारे आका अब्दुल्ला के साथ जाते हैं, एक पहाड़ के चट्टान पर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि इधर ही से बकरी को लेकर के गया है। इतना सुनना था। प्यारे आका जंगल की तरफ खड़े हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं या अबल हारिस, इतना कहना
था, जितने भी जंगल में जानवर थे सारे प्यारे आका के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने सरों को झुका देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों से बात कर रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया अर्ज करती है, मोहम्मद जो जानवरों से बात कर रहे थे ये बात तो मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन जानवर क्या मोहम्मद से बात कर रहे थे ये बात में समझ में मुझे नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा जंगल का शेर वो बकरी के कान को पकड़ के ला रहा है और लाने के बाद उसको छोड़ दिया। प्यारे आका ने जब पूछा कि तुमने जानवरों से सवाल किया कि तुमने बकरी को क्यों लेकर के गया, तो जानवरों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन का वक्फा हो चुका था, आपकी रुखी अनवर की ज़ियारत नहीं किए थे। हम लोगों ने सोचे कि अगर हलीमा की बकरी लेकर के जाएंगे तो आप खुद छुड़ाने के लिए आएंगे और आपकी रुखी अनवर की ज़ियारत हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखने के लिए जानवर भी बेताब है, जानवर भी बेकरार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन प्यारे आका की ज़िंदगी इस तरीके से गुजर बसर होती रहती है। एक सहाबी नबी के बारगाह में आते हैं जिनका नाम सासा इब्ने नाजिया है। वो अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब ये बताइए कि मैं जो ज़माने जाहिलियत में जो नेकी का काम किया क्या मुझे उसका अज्र मिलेगा, क्या मुझको नेकी व जज़ा मिलेगी। प्यारे आका ये चाहते थे कि सासा इब्ने नाजिया वो अपनी ज़बान से खुद बताए वो कौन सी नेकियां की है, वो कौन कौन से अच्छे काम किए हैं। प्यारे आका अर्ज़ करते सासा ये बता कि तुमने ज़माने जाहिलियत में कौन सी काम किया है, कौन सा अच्छा काम किया है। तो हज़रत सासा इब्ने नाजिया अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास 2 गाभिन ऊँटनी थी, अचानक वो गायब हो गई। मैं एक ऊँट पर सवार हुआ और उस ऊँटनियों को तलाश के लिए जंगल की तरफ गया तो क्या देखा कि जंगल में 2 घर है, उस घर के बाहर एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स बैठा हुआ है। मैं उसके करीब गया, उससे पूछता कि क्या आपने जो है कोई ऊँटनी देखा है, तो उसके पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया। जब मैंने उससे पूछा तो कहा ठीक है जंगल में तलाश करना, पहले बैठ तो जाओ, आप बहुत दूर से आए हैं, कुछ पानी वगैरह पी लीजिए। आज हमारा भी मामूल होता है, हमारा भी दस्तूर होता है, तो अगर कहीं से आते हैं हम भी उनको पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बैठाया, जैसे मैंने बैठा, बैठने के बाद क्या देखा कि दोनों ऊँटनियाँ उसके घर के पीछे तरफ जो तो रस्सी से बंधे हुए थे। मैंने उसको कहा यही तो हमारी ऊँटनियाँ है, यही तो दोनों हमारी ऊँटनियाँ है। वो कहा ठीक है लेकर के चले जाना, पहले पानी वगैरह पी लो। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक अंदर से औरत ने आवाज़ दी, कहा घर में बच्चे की विलादत हुई है, घर में बच्चे की विलादत हुई है। तो उस शख्स ने पूछा कि बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल गौर लफ्ज़ है कि बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। तो अंदर से औरतों ने आवाज़ दी कि बेटी की पैदाइश हुई है, बेटी की विलादत हुई है। तो उस शख्स ने कहा कि उसका गला क्यों नहीं घोट दिया, उसको क्यों नहीं मार दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शख्स जज्बे में उठा कि उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता, उसको मार देता। मैंने उसको हाथ को पकड़ लिया, मैंने कहा बैठ कहाँ जा रहे हो। कहने लगा घर में बच्ची की विलादत हुई है, मैं उसको नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे, बेटा अगर रहता तो उसको जिंदा रखता था, लेकिन वो तो मनहूस है, वो तो हमारे मुआशरे में हमारी इज्जतों को जो है तो नीलाम कर देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था। वो शख्स कहता है कि सुन ये बच्ची मुझे दे दे और ये जो 2 ऊँटनियाँ है तुम उसको रख ले। वो तैयार हो जाता है, उसको क्या वैसे भी तो उसको मारना ही था। वो शख्स सोचता है कि चलो कम से कम हमें तो ये दोनों ऊँटनियाँ तो मिल जा रही है, फ्री में मिल जा रही है, वैसे भी मैं बच्ची को मार दूंगा, खुद मिलने वाला तो है नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो शख्स दोनों ऊँटनियाँ ले लेता है, बच्ची को इसके हवाले कर देता है। जब ये अपने ऊँट पर सवार होते हैं तो सासा इब्ने नाजिया से वो शख्स अर्ज करता है कि सासा मैं तुम्हें दोनों ऊँटनी के बदले में इस बच्ची को नहीं दूंगी, बल्कि जिस ऊँट में तुम सवार होकर के आए हो ये ऊँट भी तुझे देना पड़ेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सासा इब्ने नाजिया वो ऊँट भी उसे दे देता है, 2 ऊँटनी और एक ऊँट देकर के उस बच्ची को उससे खरीद लेता है, लेकर के घर आता है। अब सासा इब्ने नाजिया का मामूल ये हो गया कि उन्होंने जो है कुछ औरतों को मुतय्यन किया, उस औरतों को मुंतखब किया और उनकी ड्यूटियाँ लगा दी। कहा जाओ तुम शहरों में जाओ, देहात में जाओ, गाँव में जाओ, और जाने के बाद क्या करो कि बच्चियों की तलाश करो, जिनके घर में अगर बच्चे की विलादत होती है तो तुम मुझे खबर देना, तुम मुझे इत्तिला करना। हजरत सासा इब्ने नाजिया को उसकी इत्तिला दी जाती। हजरत सासा इब्ने नाजिया उन घरों पर पहुंचते और पहुंचने के बाद उन जानवरों को उन घर पर पहुंचते और पहुंचने के बाद अपनी मालो जायदाद दे करके उन बच्चियों को खरीद लेते। अब सासा इब्ने नाजिया अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरीके से अपने मालो दौलत दे करके 360 बच्चियों की जान बचाई है।
क्या मुझे कोई नेकी मिलेगी, क्या इस ज़माने जाहिलियत की जो नेकियां मैंने की क्या उसका मुझे कोई जज़ा व अज्र मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए सासा, यही तो नेकियां है जो तुम मेरे दस्ते अक़दस पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सासा इब्न नाजिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों। अब नबूवत और रिसालत का ऐलान हो चुका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं। एक शिकारी एक हिरन को शिकार करके ला रहा है। जैसे हिरनी की नज़र प्यारे आका की रुखे अनवर पर पहुंचती है, वो रोने लग जाती है। वो प्यारे उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो प्यारे आका के करीब पहुंचकर वो हिरनी शिकायत करती है, अर्ज़ करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इस शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया है, इससे हमें आज़ादी दिला दीजिए। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिरनी ने इस तरीके से प्यारे आका की बारगाह में अर्ज़ की। प्यारे आका अर्ज़ करते हैं कि ए शिकारी, इस हिरनी को छोड़ दे, इसको आज़ाद कर दे, ये अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शिकारी अर्ज़ करता है कि भला कोई शिकार हाथ से छूटने के बाद वापस आता है? भला कोई शिकार वापस आ सकता है? प्यारे आका अर्ज़ करते हैं वो कोई और शिकारी होंगे जिनके शिकार छूट जाए वो वापस ना आए, लेकिन ये शिकार हमारे हैं। अब ये अगर जाएंगे तो ये मुझसे वादा की है, ये अपने बच्ची को दूध पिलाकर वापस भी आएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शिकारी उस हिरनी को छोड़ देता है। वो हिरनी चली जाती है, पहाड़ के अंदर चली जाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चे थन नहीं छोड़ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो हिरनी अर्ज़ करती है अपने बच्चे से कि आज के बाद तेरा पेट कैसे भरेगा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने नबी आखिर ज़मा से वादा करके आई हूँ, अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना सुनना था कि वो दोनों हिरनी के बच्चे अर्ज़ करते हैं कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी रुखे अनवर की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था, बकरी के साथ हिरनी के साथ उनके दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। प्यारे आका की निगाह उन हिरनी पर पड़ गई और प्यारे आका ने उस शिकारी से कहा, ए शिकारी देख, वो तेरे शिकार आ रहे हैं, और वो शिकारी नहीं बल्कि दोनों बच्चों को भी साथ लेकर के आ रहे हैं। इतना सुनना था। वो शिकारी अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले मुझे अपने शिकार में लीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो शख्स प्यारे आका के कदमों में गिरता है, मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। यह है प्यारे आका की तबलीग करने का अंदाज। प्यारे आका तबलीग कर रहे हैं, प्यारे आका रास्ते से चले जा रहे हैं, जानवर भी शिकायत कर रहे हैं। भला प्यारे आका वो कैसे जानवरों की रोने का रोना बर्दाश्त कर सकते थे? भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? प्यारे आका ने, अब प्यारे आका तो रहमत बनकर आए थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो हर जहान के लिए रहमत थे, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, नबातात हो, जमादात हो, जो भी हो, हर जहान में उनकी रहमत थी। प्यारे आका ने इस तरीके से उस जानवर को आज़ादी भी दिला दी और उस शिकारी को कलमा पढ़ा करके मुशर्रफ इस्लाम भी कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में इसी तरीके से एक शख्स अर्ज़ करते हैं, प्यारे आका की बारगाह में आते हैं, आने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऊँट आता है, ऊँट आने के बाद ऊँट ने एक शख्स आता है, आने के बाद अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट जो है पागल हो गया है, दीवाना हो गया और बिदकता है, जब मैं उसको पकड़ने के लिए जाता हूँ तो मुझे मारता बहुत है। प्यारे आका उस शख्स के साथ उसके बाग में जाते हैं और बाग में जाने के बाद उस ऊँट के करीब जाते हैं। वो शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह आप करीब ना जाएं, कहीं आपको ये ऊँट तकलीफ ना पहुँचा दे। उसे पता क्या था कि जाने कायनात है, ये जाने रहमत है। प्यारे आका उस ऊँट के करीब जाते हैं, जाने के बाद उस ऊँट से बातें करते हैं, उस ऊँट से बातें करने लगते हैं, क्या ऊँट तुम अपने मालिक को तकलीफ क्यों देते हो, तुम अपने मालिक को सताते क्यों हो, तो अपने मालिक को परेशान क्यों करते हो? मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो ऊँट जवाब देता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा मालिक है मुझे खिलाता बहुत कम है, ये मेरा जो मालिक है ये मुझसे काम बहुत ज़्यादा लेता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, जिसकी वजह से हमारे बदन की ताकतें चली गई है। या रसूलुल्लाह, मेरे मालिक से बोले कि वो हमें पहले खाना खिलाए, पहले वो हमें चारा दे, जब मैं अच्छा तंदुरुस्त हो जाऊं फिर वो मुझसे काम ले। प्यारे आका ने उसके ऊँट के मालिक से कहा कि तुम इसको बहुत कम खाना देते हो और इससे तुम काम ज़्यादा लेते हो, ये कमज़ोर हो गया है, लिहाजा पहले तुम इसे खाना खिला करके फरमा और तंदुरुस्त करो, फिर तुम इससे काम लेना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका उसी वक्त फरमाया था, उसी जगह पे फरमाया था कि अगर कोई जानवरों को पालता है तो ये पैगाम ले ले, ये पैगाम सुन ले कि प्यारे आका ने उसी जगह फरमाया था कि
जानवरों को दिन और रात में 70 मरतबा चारा दो, 70 मरतबा चारा दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बन कर आए थे। प्यारे आका हमारे लिए भी रहमत थे, जानवरों के लिए भी रहमत थे, हैवानात नबातात जमादात सब के लिए रहमत थे। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते कि उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे बयान करने में आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लफ्ज़िश हो गई हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात से बड़ी मुशर्रत और सादमानी के साथ बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 29 तारीख यानी इतवार के दिन 6:30 बजे उम्रा के लिए जा रहा हूँ। आप हज़रात मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा सफ़र आसान रहे, आने जाने में कोई तकलीफ़ें न हो और अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में हमारी उम्रा को कबूल फरमाए। 29 तारीख इतवार के दिन 6:30 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ में रवाना होऊंगा। जो हज़रात सुन्नत नहीं अदा की सुन्नत अदा कर लीजिए।